ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس دن گھر لوٹا تو اس کی موٹی موٹی آنکھیں سوج کر مزید بڑی لگ رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ روئی ہے۔ اس کے بارے میں رونے کا تصور بھی میرے دل سے قیامت گزارتا تھا، لیکن میں بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ شاید اپنے رونے کی وجہ وہ مجھ سے چھپانے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہاں چلی؟ تو آپ کے لیے پانی لینے کچن میں جا رہی ہوں کہہ کر وہ کافی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور میں اپنی طرف سے سوچنے لگا تھا کہ کہیں مجھ سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جو اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنی ہو۔ لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی بات یاد نہ آئی جو میں نے اس کی مرضی کے خلاف کی ہو۔ میں تو شروع سے ہی اس کی مرضی کا پابند تھا۔ وہ جیسا جیسا چاہتی تھی ویسے ہی سانچے میں ڈھل جاتا تھا۔ مجھے اس کی خوشی کے سوا دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ وہی میری دل کی دنیا کی مالک تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں اسے اپنے گھر میں اداس ہی دیکھتا تھا۔ اس کا اتنا روشن اور دل فریب چہرہ مجھے شادی کے بعد بجھا ہوا ہی نظر آتا۔ نہ جانے اپنے دل میں وہ کون سا راز چھپائے ہوئے تھی جو اب تک مجھ سے بھی پوشیدہ تھا۔ جب اپنے دل کی اور گزاری ہوئی زندگی کی تمام باتیں وہ مجھ سے شیئر کر چکی تھی، بچپن سے لے کے جوانی تک کی کتنی دلچسپی سے وہ اپنی باتیں بتاتی تھی، کبھی کھیل کود کا تو کبھی اپنی دوستوں کا بتا کر وہ کتنی خوش ہوتی تھی، اور میں بس اس کی گفتار کی خوبصورتی کی وجہ سے شوق سے اس کی باتیں سنتا ہی رہتا۔ وہ کسی بات پر جب کھلکھلا کے ہنستی تو میرا جی چاہتا کہ دنیا کے سارے گلاب اکٹھے کر کے اس پر وار دوں۔ وہ گلابوں جیسی شہزادی نہ جانے کس بات پہ اداس تھی۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی، اور میں نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر اس کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کے رونے کی وجہ کا پتہ لگا سکوں۔ لیکن وہ خوبصورتی کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی اور بہت ہی محبت کرنے والی بیوی بھی تھی۔ بھلا مجھے کیسے روتی ہوئی صورت دکھاتی، اس لیے کافی دیر لگا کر وہ اپنا منہ دھو کر آئی تھی تاکہ اس کی آنکھوں سے رونے کے نشان ختم ہو سکیں، اور کافی حد تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ وہی تر و تازہ اور خوش باش چہرہ لیے وہ باتوں کی لڑیاں بنتی کمرے میں داخل ہوئی، اور اس کے الفاظ کی مٹھاس میں ایسا محسوس کرنے لگا جیسے پانی کے گلاس میں شربت گھول کے آئی ہو۔ بہت ہی اپنائیت سے حق جتاتے ہوئے بول رہی تھی کہ آج کیسے میرے جانوں کو اپنی جانا کا خیال آ گیا۔ پہلے بھی کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ گھر جلدی آیا کریں، میں اکیلی بور ہو جاتی ہوں۔ اب سے پکا ہر روز اسی وقت پر گھر آیا کریں۔ اور پاس صوفے پر بیٹھتے اس کا لہجہ ذرا نرم ہوا تھا اور آہستہ سے بولی تھی، آپ کو میری قسم۔ تو میں نے جھٹ سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پاگل، پھر کبھی زندگی میں اپنی قسم مت دینا۔ انسان ہو کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، اگر قسم ٹوٹ گئی تو۔ اس بار زوردار کہکا لگاتے وہ بولی تھی، تو کیا میں مر جاؤں گی؟ اب تو بس اس کی بات پر میں بہت خفا ہوا تھا، اور پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے میں باہر چلا آیا۔ وہ دیوانی میری ناراضگی بھانپتے دیوانہ وار میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی، اور میں اسے پریشان کرنے کے لیے نہ بولنے کا ناٹک کرنے لگا، اور وہ مجھے مناتے مناتے پھر سے رو پڑی تھی، جیسے کوئی بوجھ دل پر رکھے بیٹھی تھی۔ اسے رونے کا بہانہ چاہیے تھا۔ پھر تو ایک بار پھر سے میری جان پر بنائی۔ میں نے اسے چپ کروا کے آج کہیں باہر گھومنے کی آفر کی۔ باہر گھومنا پھرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، لیکن میں ہی ہمیشہ گھر دیر سے لوٹتا تھا، جس وجہ سے ہم زیادہ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا۔ بابا کا پھیلایا ہوا کاروبار بڑھتے بڑھتے اتنے ملکوں میں پھیل چکا تھا کہ میں اب اکیلا اس کاروبار کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اسی لیے اپنے ماتحت میں نے لوگوں کی ایک فوج لگا رکھی تھی، لیکن پھر بھی ان سب کو دیکھنا بھی میرا ہی کام تھا، جس کے لیے میری بیوی مجھ سے زیادہ فکر مند رہتی کہ کبھی کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ میں اسے سمجھاتا کہ بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر نقصان کروڑوں میں ہوا تو بھی کوئی ہمارے لیے یہ زیادہ بڑی بات نہ ہوگی۔ لیکن میری وفادار بیوی کو کون سمجھاتا؟ میں دنیا جہاں کی کسی بھی فکر اور پریشانی کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اور وہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ایسی فکریں لے کر بیٹھ جاتی ہے جس چیز کی مجھے بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر ہر بار ہی میرا اسے ایسے فکر مندی اور پریشانی سے منع کرنا بیکار ثابت ہوا، اور اس کی ہی لگائی ہوئی یہ پابندیاں تھیں جس پر عمل کرتے میں نے پچھلے 2 سال سے اپنے کاروبار اور پیسے میں بے انتہا اضافہ کر لیا تھا، جس کا میں اکیلا مالک تھا، اور میرے بعد وہ اس سلطنت کی ملکہ تھی، بلکہ وہ تو ابھی سے میری دنیا کی ملکہ تھی۔ میں تو اس کے سامنے بس ایک غلام کی طرح رہتا تھا۔ میرے آگے ایک دنیا جھکتی تھی اور میں نے اپنا سر اس کے سامنے جھکایا تھا۔ وہی میرا سب کچھ تھی۔ نہ جانے میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہر کسی پر حکم چلانے والا میں کبھی اس طرح سے کسی کے حکم کا پابند ہو جاؤں گا۔ یہ تو بس محبت کا ہی جادو تھا جو میرے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا، ورنہ تو وہ ایسی لڑکی بالکل نہیں تھی
जो अपने शौहर को ऐसे अपना पाबंद बनाना चाहती हो। वो तो एक सीधी सादी और मासूम सी एक गरीब घर से आई लड़की थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था और देखते ही दिल हार बैठा था। वो सच में इस वक्त गदले पानी में खिलता एक कमल का फूल लग रही थी, जो अपने आसपास के माहौल से बेपरवाह अपनी तमाम तर ताजगी के साथ हुस्न का पैकर बनी मुस्कुराती मेरे सामने आई थी। मैंने उसे एक मेडिकल कैंप में देखा था, जहां इस वक्त तो मैं इन लोगों की हौसला अफजाई के तौर पर कुछ माली मदद भी करने पहुंचा था, लेकिन इस लड़की को देखकर तो मैं दंग रह गया। इतनी खूबसूरती आज तक मैंने अपनी आंखों से कहीं पर भी नहीं देखी थी। हालांकि मैं कई ममालिक का सफ़र कर चुका था, लेकिन ये एक अजीब ही लड़की थी जो इस वक्त सफ़ेद जैकेट पहने इधर से उधर और उधर से इधर कैंप में अपनी पूरी तवज्जो के साथ गरीब लोगों और बीमार बच्चों की खिदमत में लगी हुई थी। और उसे देखने के बाद मेरी आंखें बस इसी पर टिकी हुई थी। इसका यूं भाग भाग कर सबकी खबर लेना मुझे बहुत अच्छा लगा था। भले ही मैं पहली नज़र में इसके हुस्न और खूबसूरती से मुतासिर हुआ था, लेकिन फिर वो अपनी तबीयत में भी एक ही ऐसी थी जो बहुत सारे हजूम के साथ होने के बावजूद किसी तरह इन गरीब लोगों के बच्चों में घुल मिल गई थी। और ये सारी खूबियाँ देखने के बाद मैं दीवानावार इस पे फिदा हो गया। अपने साथ आए मैनेजर को मैंने इस लड़की का अता पता मालूम करने की जिम्मेदारी सौंपी कि पता लगाओ वो कौन है और कहाँ से आई है। आधे घंटे का ही वक्त गुजरा था कि मेरा मैनेजर इसकी तमाम तर मालूमात के साथ हाजिर हुआ। फिर उसने बताया कि वो गरीब घर की लड़की है। बाप गांव में फ़कत एक छोटा सा स्कूल चलाता है, जिससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाता है। बेटी की पढ़ाई का सुनकर मैं समझ चुका था कि वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है, क्योंकि मैंने उसे मेडिकल कैंप में ही देखा था। और फिर उसकी चाल ढाल से भी अंदाज़ा हो गया कि वो किसी बड़े घर की नहीं होगी, क्योंकि अपने जैसे लोगों के घरों की औरतों को मैंने कभी इस तरह बच्चों के करीब होते नहीं देखा था। ऐसा मासूम दिल तो गरीबों में ही पाया जाता था। फिर मैंने इमदादी रकम का चेक भी इस लड़की के ही हाथ में दिया, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठी थी, क्योंकि उसका गांव अभी तक सेहत और ज़िंदगी की बहुत सारी सहूलियात से महरूम था। अपने बाप के साथ मिलकर वो गांव वालों और अपने गांव की ज़रूरियात और सहूलतों के लिए दिन रात कोशिश भी करती। इसीलिए ही उसने खुद भी मेडिकल में दाखिला लिया था, ताकि अपने गांव वासियों की कुछ मदद कर सके। मेरे हाथ से इतनी भारी रकम का चेक पाकर वो कितनी खुश हुई थी, ये देखकर मैं खुश हो गया था। उसकी खुशी के आगे ये रकम मुझे बहुत थोड़ी महसूस होने लगी। फिर भी जितनी रकम मैं देने का इरादा करके गया था, उससे ज़्यादा देकर आया था। फिर चंद रोज़ बाद मैंने उसी कॉलेज में ही पैगाम भेजा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं जो उसको इतनी भारी रकम दे चुका था, उसके दिमाग और सोचों पर भी मेरा नक्शा अच्छी तरह छप चुका था, इसलिए इनकार की कोई वजह न बनती थी। और मेरा नाम सुनते ही वो खुशी खुशी मिलने के लिए तैयार हो गई। कॉलेज के बाद वो सीधा इस रेस्तोरां में आई जहाँ मैंने उसे बुलाया था, और फिर आके सलाम करते हुए वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर जब बैठी तो किसी अफसर या हूर परी का गुमान हो रहा था। वैसे तो गांव की रहने वाली थी और मैंने उसे उसी के गांव में ही देखा था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि वो तालीम के सिलसिले में मेरे अपने शहर में ही रह रही थी, इसलिए मिलना आसान हुआ था। पहली ही मुलाकात में मैंने अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया, जो शायद उसके लिए काफ़ी चौंका देने वाली बात थी। लेकिन जल्द ही अपने हवास दुरुस्त करते उसने कहा था कि मैं ऐसी लड़की नहीं जो आपका पैसा रुतबा देकर आपके पीछे लग जाऊंगी। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो बात मुझसे नहीं बल्कि मेरे वालिद से करनी होगी, और वो भी मेरे साथ निकाह के लिए। उसकी ये अदा भी बहुत भाई थी मुझे, जिस पर मैंने जवाब दिया था कि बिल्कुल निकाह की बात तो आपके वालिद से ही होगी, लेकिन आपकी तरफ से तसल्ली करनी थी कि आपको मुझसे निकाह करने से कोई एतराज़ तो नहीं, वरना आपका एतराज़ देखकर मैं अपना इरादा बदल लूँगा। जिस पर उसने जवाब दिया था कि आपसे निकाह तो शायद मेरी ही खुशकिस्मती होगी। एक तो आप इतने अच्छे और नेक दिल रखने वाले इंसान हैं, जो मैं उस दिन की लगी मेडिकल कैंप में देख चुकी हूँ, जिस तरह आपने ज़रूरतमंद बच्चों की मदद की थी। और दूसरा कि इस शहर की शायद ही कोई लड़की होगी जो आपसे निकाह करने से इनकारी हो। आप तो कई लड़कियों का ख्वाब होंगे। जितना बड़ा आपका रुतबा है, मुझे उसके मुंह से अपने रुतबे की तारीफ कुछ ख़ास अच्छी न लगी, लेकिन फिर भी मैं चुप हो गया कि चलो फिर भी उसने कबूल ही किया है। मैंने अलविदा लेते हुए उससे अपने घर मदऊ किया था कि मेरी अम्मा से भी मिल लें, तो उसने बदले में कहा था पहले आपको मेरे गरीब खाने आना होगा, फिर मैं भी आपके घर आ जाऊंगी। मुझे उसकी दावत कबूल थी, इसलिए मैंने कल ही उसके साथ उसके वालिद से मिलने का प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए मैं काफ़ी पुरजोश भी था। लेकिन अभी हमारी मुलाकात का इख्तिताम ही नहीं हुआ कि मुझे घर से कॉल मौसूल हुई, जिससे पता चला कि मेरी वालदा की तबीयत अचानक नासाज हो गई है और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं इस लड़की को इस बात से आगाह करने के बाद फ़ौरन से भी पहले अपनी गाड़ी की तरफ भागा, तो वो मेरे साथ वो भी गाड़ी में बैठ गई। वैसे तो उसके साथ गाड़ी में बैठना मेरे लिए बेहद खुशी की बात होती, लेकिन अब मामला कुछ और था। मेरी अम्मी जान की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचना चाहते थे।
वहाँ पहुंचकर मैंने अम्मा जान का पता किया तो उनको इमरजेंसी में दाखिल किया जा चुका था, जहाँ मेरा मिलना अब उनसे मुमकिन नहीं था। वो लड़की मेरे साथ आई थी और अब तक मुझे हौसला देकर संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। कितने मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ खड़ी थी। और फिर कुछ डॉक्टरों से मिलकर उसने अम्मा की तबीयत के बारे में पूछ-गुछ की और जो कुछ उसे डॉक्टरों ने बताया उसके बाद तो वो मुसलसल ऐसे मेरी हिम्मत बंधाने और पहले से भी किसी मामले के लिए तैयार करने के लिए मुझे मजबूत बना रही थी, जैसे वो समझ चुकी थी कि मेरी अम्मा के पास ज़्यादा वक्त नहीं मौजूद। और फिर इसका ये अंदाज़ा ठीक ही साबित हुआ। उसी दिन शाम को डॉक्टर ने मुझे अम्मा के पास जाने की इजाज़त दी और काफ़ी महदूद बातचीत का कहा। मैं बस अम्मा से मिलकर उसे इतना ही बता पाया था कि आपके लिए बहू मैंने ढूंढ ली है, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं तो हम साथ मिलकर आपकी बहू को घर लेकर आएंगे। अम्मा ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और फिर डॉक्टरों ने जल्दी से मुझे बाहर भेजकर इलाज और कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन फिर उनकी कोई भी कोशिश अम्मा की ज़िंदगी ना बचा सकी और अम्मा हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया में चलना सिखाया, आज वो खुद दुनिया में मुझे अकेला कर गई थी। लेकिन अम्मा के गुजर जाने के दुख से भी मुझे इस लड़की ने निकाला और हर कदम पर मेरे साथ साथ रही। वहाँ आए सभी रिश्तेदारों को भी हैरानी थी कि मेरे साथ साथ रहने वाली वो लड़की कौन है, लेकिन मैंने भी फिर सबको ही सवालों के जवाब में कहा कि वो मेरी मंगेतर है, क्योंकि अम्मा के स्वयं पर आए उसके वालिद ने मुझे अपनी मर्जी से आगाह कर दिया था। यकीनन ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं था, लेकिन ये वक्त अचानक ही आया था और वो लोग मुझसे हमदर्दी ही करना चाहते थे। फिर वो लड़की अपनी फैमिली के हमरा मेरे घर ही रही थी, तमाम इंतजामात संभाल लिए थे। इस तरह वो शादी से पहले ही अपनी सलाहियतें मेरे सामने पेश कर चुकी थी और मैं जो पहले से ही अपना दिल हार बैठा था, अब उसकी काबिलियतों को देखकर उसको मजीद चाहने लगा था। अम्मा को गुजरे 40 दिन हो चुके थे और वो मुसलसल मेरा ख्याल किसी अपने की तरह रख रही थी। 40 दिन के बाद मैंने सोचा कि इस रिश्ते को कोई नाम तो देना ही होगा, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने घर मदऊ किया था, जिसके लिए मैं अम्मा की वफ़ात के बायस नहीं आ सका। अब तुम्हारी दावत पर आना चाहता हूँ और तुम्हारे घर वालों से भी बात करना चाहता हूँ। वो मेरी इस बात पर बहुत खुश हो गई और उसी दिन फ़ोन करके अपने घर वालों को इतला दी। वहाँ पर भी मेरे आने की खुशी में तैयारियाँ शुरू हो गईं। उनका घर क्योंकि गांव में था और हमें कोई 3-4 घंटे का सफ़र तय करके जाना था, इसलिए अगले दिन वो सुबह सुबह मेरे घर पहुँच गई कि जल्दी निकलना है और मैंने उसे कोई आधे घंटे का इंतज़ार करवाया। फिर तैयार होकर हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। वो फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठी थी। उसके साथ सफ़र करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा और ये 4 घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला था। हम गांव की गलियों में दाखिल हुए तो चारों तरफ से गाड़ी को बच्चों ने घेर लिया, जो देख के मुझे बहुत अजीब लगा था। फिर उसने बताया कि यहाँ क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम ही आती हैं, इसलिए गांव के बच्चे हमेशा गाड़ी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जल्दी हम उसके घर के करीब आकर रुके, जहाँ उसके वालिदैन पहले से बाहर आकर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। मैं उन सब से मिलकर बहुत ही अपनापन महसूस करने लगा और इस वक्त तक दोपहर के खाने का वक्त भी हो चुका था। मैं ये देखकर हैरान तो हो गया था कि गांव में रहते हुए भी ये लोग कितने इकसाम के तमाम बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना लेते थे, जो कि खाकर मैंने सच में ही बहुत इंजॉय किया था। खाने के बाद हम चाय के लिए बाहर खुली फ़ज़ा में आकर बैठे। चाय के दौरान ही अपने मुद्दे की बात पर आया। मैंने बाकायदा तौर पर उसके वालिदैन से उसका हाथ मांगा और इन लोगों ने बड़ी ही खुश इखलाक़ी से मुझे अपनी बेटी के लिए कबूल कर लिया था। मैंने अभी निकाह की बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो अभी तालीम हासिल कर रही है और अपनी तालीम के लिए वो किस कदर जुनून रखती है, ये भी मुझे अच्छी तरह मालूम था। वो पूरा दिन मैंने गांव में गुजारा और उस दिन पहली बार मैंने गांव की ज़िंदगी को इतने करीब से देखा था। वैसे तो मुझे गांव के हुस्न और कुदरती नज़ारों से भरी ज़िंदगी का पता था, लेकिन वो सिर्फ मालूमात की हद तक ही था। खुद महसूस मैंने पहली बार किया था और महसूस करने के बाद दिल ने चाहा था कि मैं बस यहीं का होकर रह जाऊँ। लेकिन अब जो मंगेतर थी वो अपना पूरा हक जता कर कहने लगी कि वापस भी जाना है। आपके कितने काम आज के दिन में रह गए होंगे जिन्हें कल जाकर पूरा करना है। मैंने फिर मजाक में कहा था कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी में अम्मा की जगह ले ली है। वो भी ऐसी ही थी जो कभी मेरी किसी काम के मामले को अधूरा नहीं रहने देती थी, जिस पर वो कदरे संजीदगी से बोली थी कि तभी तो आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अम्मा जी ने हमेशा आपको सही राह पर चलाया और आइंदा मैं भी अम्मा जी की ही राह अख्तियार करूँगी और आप पर उनकी तरह ही पाबंदियाँ रखूँगी। उसका ये अंदाज़ देखकर हम दोनों की ही हंसी छूट गई थी, लेकिन अगले ही पल हम अम्मा को याद करके फिर अफसुर्दा हो गए। वो बोली थी कि काश मैं अम्मा जी की ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो उनसे मिली होती। कितनी बदनसीब बहू साबित हुई हूँ मैं, जो कि अपनी सास को सिर्फ उनके आखिरी लम्हात में ही देख सकी। उसकी आंखों में तैरते आंसू में साफ देख सकता था जो अम्मा का जिक्र करने पर उभर आए थे। कितनी मासूम थी वो, जो अपनी उस सास के लिए रो रही थी जिससे वो कभी मिली तक नहीं थी, या फिर ये कि उसकी
मेरे लिए और मेरे रिश्तों के लिए सच्चाई थी, जो उसे इतनी हमदर्दी मेरी माँ के लिए महसूस होती थी। फिर हम दोनों उसके माँ बाप की दुआएं लेते शहर के लिए वापस रवाना हुए थे, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई की खातिर शहर ही हॉस्टल में रहती थी। मैंने उससे अपनी मंजिल पर छोड़ा और अपने घर चलाया। मैं आज कितना खुश था कि वो मेरे नाम की हुई थी। हम दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था। चंद रोज़ यूं ही गुजरे थे। उससे मिले बिना अब मेरा वक्त जैसे रुक सा जाता था, और पिछले दिनों बहुत वक्त सा गुजरा था तो अब जैसे मुझे उसकी आदत सी होने लगी थी। जिंदगी में अम्मा के गुजरने से जो खला पैदा हुआ था, चंद दिन इस लड़की के साथ ने जैसे मुझे वो महसूस ही ना होने दिया। लेकिन जब से हम दोनों इस रिश्ते में बंधे थे, वो मेरी मंगेतर बनी थी, तब से उसने पहले की तरह घर आना जाना बंद कर दिया था। ये इस रिश्ते की फितरी शर्म थी या इसके घर वालों की तरफ से लगाई गई कोई पाबंदी, मुझे तो मालूम नहीं था। लेकिन मेरा वक्त अब उसके बगैर बिल्कुल ना गुजरता था। मुझे उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती, और फिर उसकी पढ़ाई ख़त्म होने में भी अभी कुछ साल लगने थे। मैंने कई बार उससे मिलकर कहा था कि इतने दिनों तक मुझे अपना चेहरा ना दिखाकर इतना मजबूर ना किया करो कि मैं पागलों की तरह तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर तुम तक खिंचा चलाऊं। मुझसे मिलने घर आया करो। वो तुम्हारा ही तो घर है, जो तुम्हारे बगैर एक वीराने के सिवा कुछ नहीं लगता। लेकिन अब वो घर नहीं आती थी। हमेशा ही इस बात के जवाब में चुप हो जाया करती। न जाने उसे क्या खौफ होता था जो मुझसे यूं अकेले में घर मिलने से घबराती थी। मैंने तो हमेशा ही उससे मिलने पर अपनी हदूद का ख्याल रखा था। शायद उसे यही खौफ था कि मैं जो दीवानावार उससे मोहब्बत करता था, कहीं कभी उस पर हक ना जताने लग जाऊं। लेकिन उसकी हर अदा की तरह ये हया भी मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने फिर उसे घर बुलाने की जिद करना छोड़ दिया। और फिर 14-15 रोज़ उससे मिलने भी ना गया था कि उसके ख्यालात और उसकी सोच की मैं इतनी कदर करता था। लेकिन वो भी मोहब्बत में मुझसे कुछ कम न थी। एक रोज़ मैं जैसे ही ऑफिस से लौटा तो मुलाजिम ने खबर दी कि मैडम दोपहर से घर पर आई हुई हैं और आपके इंतज़ार में हैं। मैंने मुलाजिम को डांट दिया कि उनका इंतज़ार करवाने की बजाय मुझे फ़ोन पर बताया क्यों नहीं। मैं उसकी खातिर दुनिया का हर काम छोड़ कर आ सकता था। लेकिन फिर मुलाजिम ने उतरा हुआ चेहरा बनाते हुए बताया कि इस बात से भी मैडम ने ही मना किया था कि साहब को डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने ब्रीफ के सोफे पर पटकते हुए उससे कहा कि ईशा, कमाल करती हो यार, तुम यहाँ दोपहर से अकेली बैठी इंतज़ार कर रही हो और मुझे बुलाना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। तो मुझे रिलैक्स रहने का हुक्म सादर करते उसने कहा, मेरा अपना ही घर है, क्या मैं इस घर में अकेली नहीं रुक सकती? तो मैंने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अरे बाबा, ये घर क्या चीज़ है, ये ग़ुलाम भी आपका है। लेकिन मुझे इतना वक्त भी तुम्हारे साथ गुजारने का मौका मिल जाता तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होती। तो वो मुस्कुराते हुए बोली थी, अगर ऐसा ही है तो आप ये खुशियाँ ज़िंदगी भर मनाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं इस बात का मतलब न समझते हुए कदरे हैरत से पूछने लगा कि आपके कहने का क्या मतलब है? तो वो खुलकर बोली थी कि मुझे बाबा ने कहा है कि आपसे कहूँ आप जब चाहे निकाह कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। मैं खुशी से झूम उठा और बोला, सच? वैसे मैंने पहले इसलिए बात नहीं कही थी कि तुम्हारे वालिदैन शायद एतराज़ करेंगे कि हमारी बेटी की मेडिकल की तालीम अभी अधूरी है। फिर उसने बताया कि अम्मा बाबा का कहना है कि तुम वैसे भी इसी शहर में रह रही हो और आतिफ भी अकेला है, ऐसे में मुनासिब नहीं कि हम उससे मज़ीद सालों तक इंतज़ार करवाएं, इसलिए निकाह कर लो, फिर अपने शौहर की मर्ज़ी से तालीम भी जारी रखना। मुझे वैसे भी यकीन है कि आप मुझे पढ़ने से तो नहीं रोकेंगे। मैंने कहा था, अरे नहीं नहीं, मैं भला तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ, तुम अपनी और मेरी दोनों की मर्ज़ी के मालिक हो। और मुस्कुरा दी थी और जाने की इजाज़त चाही थी। लेकिन मैंने फिर नाराज़गी दिखाते हुए कहा कि ये क्या बात हुई, भला कम से कम आधे माह बाद मिली हो, अब भी बात ख़त्म करके जाने लगी हो। अब तो मैं तुम्हें रोकने का ज़्यादा हक रखता हूँ, इसलिए आज रात का खाना तुम यही खाओगी मेरे साथ। और फिर से मेरी बात सुन के घबरा गई थी, लेकिन इस बार मैंने उसकी घबराहट दूर करते हुए कहा था, ईशा, तुम्हें कोई भी गुमान करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराई और फिर हम दोनों काफ़ी पीने लॉन में चले आए। मैंने मुलाजमीन को स्पेशल खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया, जिसकी तैयारी में तमाम मुलाजमीन शाम से ही लग गए। हम दोनों ने काफ़ी पीने के बाद कुछ बातें की और फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है? तो वो हंसकर बोली थी कि ये कैसा सवाल है, मैं एक लड़की ही हूँ और शॉपिंग करना तो हर लड़की को बहुत पसंद होता है। तो मैंने कहा था, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। वो पहले तो इस बात से कुछ झिझक गई, लेकिन मेरे 2-3 बार कहने पर फिर वो मान गई और हम दोनों ने फिर मिलकर शॉपिंग की थी। मैंने भी बहुत वक्त से अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। इस बहाने मैंने भी अपना काफ़ी सामान ले लिया और ईशा भी अपनी पसंद की चीज़ें लेने लगी थी। मेरा उसे शॉपिंग करवाने का मकसद भी यही था कि उसकी पसंद नापसंद जान सकूं, क्योंकि शादी के लिए भी मैंने उसकी पसंद की चीज़ें खरीदनी थी। उसकी तरह उसकी पसंद भी बहुत शानदार थी। वो अपने लिए एक चीज़ पसंद करती तो उसके साथ 4 चीज़ें मेरे लिए पसंद कर लेती थी। हम दोनों रात तक घर लौटे तो गाड़ी पूरी हमारी खरीदे हुए सामान से भर चुकी थी। सिर्फ फ्रंट पर उसके और मेरे बैठने की जगह बाकी थी। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। घर आए तो डिनर बिल्कुल तैयार था।
और हमें भूख भी जोरों की लगी थी। दोनों ही जल्दी से फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर पहुंचे, जो तरह तरह के लवाजमात से भरी हुई थी। वो इतना सारा खाना देखकर बोली थी, ये सब तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा लग रहा है जैसे इस मेज़ पर किसी पूरे ख़ानदान का खाना लगा हो। मैंने कहा था तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम हो, फिर मैं कोई कमी कैसे छोड़ता। वो मुंह बनाते हुए खाना शुरू करने का कहकर खुद भी खाने लगी। मेज़ पर रखे चम्मच, छुरी और कांटे छोड़कर वो सादगी से अपने हाथों से खाने लगी थी। मुझे उसका ये अंदाज भी बहुत भाया। खाने के बाद हम दोनों अलग अलग कमरों में सोने चले गए और आज शायद अम्मा के जाने के बाद ये पहली रात थी जब मैं इतना सुकून से सोया था। ये कैसी नींद थी जो मुझे सपनों की दुनिया में ले जाने के लिए इतनी जल्दी आ गई थी, जबकि पहले तो हर रोज़ मेरा तकिया अम्मा को याद करके आंसुओं से भीग जाता था और फिर रात न जाने कितनी गुजर गई और नींद मुझसे कोसों दूर ही रहती थी। इस सुकून और आराम की नींद ने मुझे ऐसे अपने होश में लिया कि सुबह होने का भी पता न चला और मेरे कमरे के दरवाजे पर खटकने की आवाज़ हुई। तब मेरी आंख खुली। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी थी। उसे देखकर लगा जैसे ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी, जब मेरे दिल की दुनिया में बसने वाली लड़की मेरे सामने मौजूद थी। मुझे देखते ही वो बोली, ये क्या हुआ भला? मैं सुबह 7 बजे से जाके आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आप 10 बजे तक सो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि 10 बज चुके हैं, क्योंकि मैं तो 8 बजे तक उठ जाया करता था। फिर घड़ी की तरफ देखा तो सच में 10 बजे थे। मैं खुद पर हैरान होते उसे 2 मिनट की इजाज़त लेके वॉशरूम चला गया और कोई 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर बाहर आया तो वो मुझे नाश्ते की मेज़ की तरफ खड़ी मिली, जहाँ मेरे ही इंतज़ार में थी। मैंने पूछा, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया? तो वो बोली, आपसे पहले कैसे नाश्ता कर सकती हूँ? मुझे तो जैसे कि अल्फाज सुनते दुनिया जहाँ के नज़ारे अपनी किस्मत पर रश करते महसूस हुए। मैं फ़ौरन कुर्सी पर बैठ गया और उसे भी बैठने का इशारा किया। वो बैठ चुकी तो हमने नाश्ता शुरू किया। आज मुझे खाने का जायका कुछ अलग ही लग रहा था। मैंने कहा, ये आज मुलाजमा के हाथ का जायका कैसे बदल गया? तो वो चाय की सिप लेते हंस पड़ी और बोली कि आज नाश्ता इस मुलाजमा ने बनाया है। मैंने परेशान होते कहा कि इतने सारे मुलाजमिन के होते आपको किचन में झुलसने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा था कि कुछ काम अपने दिल की खुशी की खातिर किए जाते हैं। मैंने उसकी नादानी पर बस सर ही हिलाया था और नाश्ते के बाद हम दोनों इकट्ठे गाँव के लिए रवाना हुए, जो पहले से ही तय था कि कल साथ जाना है। वहाँ पहुँचकर एक बार फिर मैंने बेशुमार प्यार समेटा और मैंने लोगों से निकाह की इजाज़त चाही, जिस पर इन सब ने कोई एतराज़ जाहिर न किया और गांव से ही मौलवी को बुला लिया गया, जिसने हम दोनों का निकाह पढ़ाया। हम सब ने इस बात की खूब खुशी मनाई और हम दोनों मियाँ बीवी बनकर शहर वापस लौटे थे। 2 कपड़ों में वो मेरे साथ रुखसत होकर आई थी। जो इन लोगों का मुझ पर कितना बड़ा एहसान था। मेरा अकेलापन देखते और एहसास करते उन्होंने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी थी। सच में ये लोग मेरे लिए फरिश्तों जैसे साबित हुए थे। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी को अपनी सोच से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी पाया। यकीनन वो मेरी किसी मकबूल नेकी का सिला थी। अगले 2 दिनों बाद मैंने एक शानदार वलीमे की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें उसके भी तमाम ख़ानदान वाले और काफ़ी सारे गांव के लोगों ने शिरकत की। सभी उसके शौहर की शान और शौकत देखकर बहुत खुश हुए। उसने फिर बाकायदा मेरे घर एक मालकन की तरह ही संभाल लिया था। यूँ हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी बहुत ही प्यार मोहब्बत से गुजरने लगी और देखते ही देखते 2 साल कैसे गुजरे थे पता ही न चला था। इस दिन जब घर में उदास देखकर मैंने बाहर घुमाने की बात की और हम दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बातें करने लगे, तो मैंने उससे अपनी कसम देकर पूछा था कि तुम किस बात पर रोई थी। पहले तो उसने बात को टाल मटोल किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं हमेशा ही तुम्हें उदास देखता हूँ, ज़रूर कोई तो वजह होगी। जिस पर उसने बताया कि डॉक्टर बनना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था, जो मैंने आपकी ज़िंदगी से अकेलापन दूर करने की खातिर अपने माँ बाप के कहने पर कुर्बान कर दिया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप शादी के बाद मुझे पढ़ाना फिर शुरू करवाएंगे। लेकिन फिर ज़िंदगी की मसरूफियात में हम दोनों ऐसे उलझे कि कभी आपको इस बात का ख्याल तक ना आया और मैंने भी सोच लिया कि अपनी तमाम ज़िंदगी आपके नाम कर दी है, अब अपने ख्वाबों के बारे में नहीं सोचना। लेकिन फिर जब भी अम्मा से फ़ोन पर बात होती और अपने गांव का हाल अहवाल पूछती तो पता चलता मेरा गांव आज भी सेहत की इन सहूलतों से महरूम है और वहाँ के लोग कितनी मुश्किलों से अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं। तो मुझे वो दिन याद आ जाते जब कितनी मेहनत से मेरे बाबा ने मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया था कि मेरी बेटी गांव में क्लिनिक खोलेगी और अपने लोगों का मुफ्त इलाज करेगी। मुझे उसकी बातें सुनकर सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जिसने मेरा इतना ख्याल किया, मैं कैसे उसकी ख्वाहिश भूल बैठा, जबकि उसने शादी से पहले इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन अब मैंने उसकी तालीम फिर से शुरू करवाने का कहा तो उसने इनकार कर दिया और बोली, क्या आप मुझे बस गाँव में क्लिनिक बनवा दें, मैं अब आगे नहीं पढ़ सकती। मैंने जब पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ सकती तो उसने मुस्कुराते हुए बताया, क्योंकि अब आपका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। तो मैं ये सुनकर खुशी से पागल हो गया। मेरा दिल चाहा कि यहीं पर उसे अपनी बाहों में उठाकर झूमने लगता, लेकिन अपने जज्बात पर काबू करते
मैंने इस खुशी में उसके गांव में क्लिनिक बनवाने का वादा किया और अगले चंद ही रोज़ में ये काम मैंने मुकम्मल करवा लिया, जहाँ एक बहुत ही आला तालीम याफ्ता डॉक्टर भी मैंने मुकर्रर करवा दिया। मेरी बीवी खुद भी इस क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड मशीन रखवा कर लोगों का मुफ्त अल्ट्रासाउंड करती। उसकी इसने तालीम भी ली हुई थी। अब गांव के लोगों का इलाज अल्ट्रासाउंड की वजह से ज़्यादा अच्छे तरीके से होता था और मुझे उसकी ये नेकी बहुत पसंद आई थी। मेरी बीवी ने कहा था कि इस क्लिनिक पर गरीब लोगों के होने वाले मुफ्त इलाज से मिलने वाली तमाम नेकियों का सवाब वो मेरी अम्मी जान के नाम करती हैं, तो मैंने खुश होकर उसका माथा चूम लिया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।